Hello and welcome to wherever you might be and watching us. This is the DP World Dressing Room. I'm Fakhri Anam and you're watching 10 Sports. Our live and exclusive coverage of the ICC Champions Trophy. It's another day at the ICC Champions Trophy, another game. Yesterday, unfortunately, we had a game that was washed out. It was going to be a cracker of a game had it been played. But unfortunately, we couldn't see the excellence that both the sides possess, that's South Africa and Australia. But both of them walk away with 1 point each. But today is another interesting contest, and it is happening in Lahore. On your screens now, this is the game coming up. This is match number 8, Afghanistan versus England, live from Gaddafi Stadium, Lahore. And why is this an interesting game? Well, we'll talk all about it with our 4 experts that we have here in the DP World Dressing Room. Let me bring them into the conversation. First up, I've got a very special gentleman, great sense of fashion, used to bowl off spin, pinch hitter, proudly represented India, and then the broadcasting world has been mesmerized by his insights on the game of cricket. Please welcome Nikhil Chopra. Nikhil, good afternoon and welcome. Haji, good afternoon. Thank you. रुलाएंगे क्या? Next up, ladies and gentlemen, I have the man himself, the toe-crushing, batsman terrorizing, golf swinging, outstanding individual who has been absolutely harassed by most of us in this DP World Dressing Room. We've got Waqar Younis. Good afternoon, assalamu alaikum, and welcome, Waqar. Good afternoon. Good How to are see you doing? brother? Yeah, great to see Like you. always, looking sharp. Yeah, thank you. Yes. Thank you very much. Any golf Looking plan forward. today? We'll see. We'll see how it goes. Yeah. It's an important game of this, group. So we'll see. All right. Yeah. Yep. Next up, we've got the royalty of cricket himself, ladies and gentlemen, one of the greatest all-rounders of all time, represented Pakistan with great pride, captained Pakistan to great many victories, brought us a lot of glory in his days. I've got the man himself, my very dear friend and a super talented Wasim Akram. Good afternoon. Good afternoon and Wasim. Assalamu alaikum. Wa alaikum Alaikum assalam. Yes, that's the way to do it. All right. And, finally, ladies and gentlemen, real royalty in the house. We've got with us, he's going to be there very soon. Right now he's in waiting, but he is royalty nonetheless. Proudly represented India, played many a great innings and entertained crowds all over the world. We've got Mr. Ajay Jadeja. Good afternoon, Ajay. Good afternoon, namaskar, and adab to all in Pakistan because we're going to Pakistan. Yes, yes. And, we're going all over the world, by the way. You know, it's been fantastic that ever since we've started the DP World Dressing Room, Ajay, Wasim, Waqar, Nikhil, we've actually found audiences in many new places as well. I mean, generally, we've had a global footprint, especially on YouTube, on digital. But it seems like that global audience is expanding as well. We're finding new viewers coming in from Mauritius. We're finding, not that they play cricket there, but I'm sure there's some of the Desis settled in Mauritius and Malta. Europe? More European countries. So really, really happy. all credit to you, the pilot of the show. If I was the pilot of the show, we would not be flying. No, I don't care whether we fly or not. You make sure we land. Yes, that's the important part. Landing is the most important part of the whole thing. Right जी, कल बदकिस्मती से मैच नहीं हो सका. रावलपिंडी में बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से हम लोग जो थे वो बगैर किसी गेम के यहाँ से गए. बट बड़ा ज़बरदस्त खेल होना था अगर होना था वसीम, because Australia, South Africa looking super solid, and of course that Australian chase against England, you know, we missed out an opportunity. Yeah, we did, but unfortunately weather is in nobody's control. और दो दुनिया की top टीमों का मैच था कल, but it happens in this particular sport. In cricket, rain happens, 1 point each. But today's game is a knockout. So for literally a knockout, जो भी टीम जीतेगी वो टूर्नामेंट में रहेगी, जो भी टीम हारेगी unfortunately they'll probably have to go back home. ये standings देख लेते हैं जरा, ये आपके सामने लेकर आते हैं on your screens now. This is how the Champions Trophy is loaded in this group right now. This is Group B, which was South Africa, Australia didn't get a game yesterday, 1-1 each, so they have 3 points each. Now, England, Afghanistan. Today is do or die for both these teams. If they want to keep alive in this tournament, they have to win this game. But बहुत सारे लोग समझते होंगे कि शायद this should not be very difficult for England. I don't think so, because England and Afghanistan have played 3 games together, all 3 of them in the World Cups, and 2 victories with England, 1 with Afghanistan. And Afghanistan, the last one was in India.
And Ajay, you were with the team at the time, mentoring them, being on their side. What is the magic ingredients that Afghanistan needs to bring to the game today to recreate that? I think belief is probably the word that I'd look at. They need to have that belief that, you know, it wasn't one-off thing or it wasn't in the past. And now, I believe that they do believe in that way, because ever since that World Cup tournament, wherever they've gone in the world, they've only gone further and further and further. And for Afghanistan, it's never just a game. I mean, I know it's a game of cricket, but for these boys, when they go out there on that field, it has a different dimension to their lives. It's for them, for their country, for people back home. It is like hope. I mean, this is something that they cherish. The whole country that unites them together. It unites them. This is one happiness. I mean, this is my opinion. I may be wrong. I hope nobody gets me wrong. Because they believe in that. When they actually get onto that field, we all represent our countries. There's no doubt about it. But where they've come from, they look at it, and, you know, when they win a game, they are happy, of course. But, you know, all the stories around the team was always, you know, mere wahan pe ye ho gaya. There were days where, you know, they are allowed to probably play music. This is hope. This is, you know, there is not much happening out there. I haven't been there, so I won't be. This is only what I've gathered from them. So it is more than a game. It's special for them. And this is hope to them that brings them happiness, which a lot of us who live everywhere else in the world feel that is common. कहीं ना कहीं जडू ऐसा लगता है कि, you know, अफगानिस्तान जो है ना वो कंडीशन की टीम है. I mean, इनको उनकी conditions अगर उनको मिलती हैं, क्योंकि basically heavily rely on their spinners. They got mystery spinners, and of course राशिद का बहुत बड़ा impact होता है. लेकिन अगर उनको conditions ना मिले, अगर flat conditions हो, तो I think दूसरी टीम को कहीं ना कहीं edge जरूर होता है. और I think, sorry, Nikhil, अजय भाई, आप टीम के साथ थे. Do you feel कि 24 महीने पहले और अब जो आप belief की बात कर रहे हैं, do you think अब everybody is expecting them to go out there and win? Did they perform better or they felt better when they go into a game feeling underdogs? No, I mean, generally that is the case. But what I found with them, that they only got better when they felt that they could win. They probably, you know, even before that World Cup, I mean, I was blessed to be around when all good things happened. But even before that World Cup, if you look, I mean, not rubbing it into Pakistan, but every game that they played against Pakistan, it was last over where they could have won, and they lost. They were getting closer and closer. They were getting closer and closer and closer. They were closing the gap. So when they started believing that they should win, is when they've actually started doing well. So I don't think this is a team that feels better when they're underdog. लेकिन बात वही है ना फिर conditions की ना, क्योंकि basically वो जो matches you were talking about कि पाकिस्तान के against close matches हुए, last 4 matches हुए हैं, वो शारजा में हुए हैं. शारजा the conditions where they like playing, और उनका ये home ground भी रहा है शारजा. So I feel somewhere along the line, I mean पिछले मैच में भी देखा against South Africa कि, you know, उनके पेस अटैक उतना नहीं है. वही मैं बात थोड़ी सी जान वाली होएगी. वही मैं बात करना चाह रहा था कि जो पिछले मैच में हमें इनकी जो सबसे बड़ी वीकनेस लगी है, just that was their fast bowling. Their main bowler Farooqi, after 3-4 overs, he looked a bit tired. I hope I'm wrong, but this is my opinion. Fazal, you really bowled well in ILT20. You've been bowling brilliantly for the whole year. आप दोनों तरफ बॉल स्विंग करते हो, वो हम सबको पता है, ऑपोजिशन को भी पता है. पिछले मैच में वो पिच थी बैक ऑफ अ लेंथ, आपने पहले ही ओवर की 3 गेंदें यॉर्कर की, फिर आप प्रेडिक्टेबल बन जाते हो. सो मेक श्योर एज अ फास्ट बॉलर और मीडियम पेसर, पिच ऑब्वियसली लाहौर की पिच हम सबको पता है, इज अ फ्लैट एज अ रोड, लाइक अ पैनकेक. बिल्कुल 351 किया ऑस्ट्रेलिया ने, नॉर्मल 304 किया साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड के खिलाफ, 330 किया न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ. तो इट्स अ गुड बैटिंग विकेट. मिडिल ओवर में स्पिन इज अ वेरी गुड. राशिद इज वन ऑफ द बेस्ट. नूर वी नो इज वेरी टैलेंटेड, ही हैज इंप्रूव्ड अ लॉट. बट जब शुरू के 10 ओवरों में अगर आपको थोड़ी मार पड़ जाती है या विकेटें नहीं मिलती, तो वो पीरियड है आप लोगों के लिए टू गेट टुगेदर एंड मेक श्योर कि अगर विकेट नहीं भी मिलती तो हमने कम बैक कब करना है और कैसे करना है. और मेरा नहीं ख्याल को विकेट वो पैनकेक है, बिकॉज़ इफ इट्स अ पैनकेक दे डोंट माइंड दैट द सॉफ्ट पिच दे लाइक वो फंसती है गेंद उसके अंदर. आई थिंक गेंदबाज फिर कोप कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जिनकी अच्छी बॉलिंग अटैक है, उनके अगेंस्ट भी 350 बन गए. आई थिंक प्रॉब्लम जो है इनको, आई मीन यहाँ से बैठ के आसान है, बैटिंग है उनका. जब कंडीशंस जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि गेंदबाज का क्या होता है कि वो एवरेज, या हमको ये नहीं नजर आ रहा राशिद ने 10 में 28 दे के 3 आउट किए हैं, क्योंकि अब स्कोर 350 का अगर मैच है
तो हर बॉलर दुनिया में वो 50-55 में 3 आउट करता है। Yeah. तो बॉलर फिर भी कोप कर लेते हैं, फास्ट बॉलिंग यस, सही। बट उनकी जो बल्लेबाजी है ना वो struggle उसमें बहुत बड़ा फर्क आ जाता है जब थोड़े से कोई तुनने लग जाए, और वो भी खासकर अगर गुरबाज और इब्राहिम स्कोर ना करें तो। ये बिल्कुल बड़ी हुआ है। निखिल, लेट मी आस्क यू दिस, देयर वर टॉक्स इन इंग्लैंड कि जी हमें ये गेम नहीं खेलनी चाहिए, वी शुड बायकॉट द अफगानिस्तान मैच, वी शुड नॉट बी प्लेइंग इट because of whatever is happening in Afghanistan. जिस तरह आपने कहा कि उनके you haven't been there but you've heard that there are ये इंग्लिश है सही, English side से जो है उनको उतने साल पहले जाना भी नहीं चाहिए था फिर वहाँ पे। good point क्रिकेट नहीं, क्रिकेट के अलावा हुई है तब ये हालात हुए नहीं, हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी, if you remember, last year इनका टूर कैंसिल किया था cancel when किया था the मैं so government changed. so that was my question, Wasim, and I think I leave it for all of you, not just Nikhil, is that should we mix politics and sports? Not Why at do we all. keep going back to this? उनमें इन बच्चों का तो कसूर नहीं है ना, वो तो exactly. गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आपने बात करनी है, स्पोर्ट्स हैज टू कैरी ऑन। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, सब जो बड़े मुल्क हैं वो इनकी हेल्प करें, बल्कि अगर वो नहीं कर रहे तो कम से कम इनको ज्यादा क्रेडिट खिलाएं बजाय कि इनको बैन करें। Good point. बैन not their fault. बायकॉट कर देंगे, इनके साथ हम मैच नहीं खेलते because But girl education again, like नहीं हो रही Jattu और ये नहीं हो explained, रहा, I said which I am all for. I mean, we want that things should be wo. But again, this should be a political matter. It should be separated from this. It's very unfortunate. जो अजय भाई ने कहा, it's sport is bringing everybody together. Yeah. It's giving you hope. I mean, it's not your decision. You're part of the Champions Trophy. You're part of the ICC. If there's a tournament, you go out there and compete. It's Yeah. not your decision. Why are you getting into politics? Like you're saying, don't mix sport I mean, and politics. जो You're गवर्नमेंट giving के hope to डिसीजंस life. हैं गाय Yeah. वो निखिल, वो इन लड़कों का कसूर थोड़ी है, ये थोड़ी डिसाइड कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट ने क्या करना है। दे आर स्पोर्ट्समैन Yeah. एंड बजाय कि उनको और सपोर्ट करें हम क्रिकेटिंग प्लेइंग नेशंस, उनको ज्यादा क्रिकेट दें, आप उनको टूर कैंसिल कर रहे हो, सो दैट्स नॉट फेयर ऑन दीस बॉयज। That's not. I think unanimously, I think every sportsman and every sports-loving person around the world would agree to this, that this should not be the case. This is not the approach to take. And well, that's sad, but also a very important point. They're not getting enough cricket with the test-playing nations. जैसे कि आपने कहा, they. That's where ICC has to really look into. फिर वो suddenly आप कहते हो क्रिकेट को हमने ग्लोबलाइज करना है, and then all the associate teams को आपको वर्ल्ड कप नजर आती हैं, अफगानिस्तान फिर थोड़ा बहुत नजर आ जाता है once in a while, but they should be getting proper series, proper tours, एक उनका पूरा कैलेंडर बनना चाहिए, because क्रिकेट के ये जो अफगानिस्तान की टीम है, ये क्रिकेट में एक हीरे की तरह है, because इनका टैलेंट, एक्साइटमेंट, इनकी विल पावर, everything, and like Jaddu and I said कि ये पूरे मुल्क को, अफगानिस्तान को, they've been through a lot as a nation, has been going through a lot, so they उनको इकट्ठा करता, उनको थोड़ी सी खुशी देता है। So yes, ICC had to really step in to make sure अफगानिस्तान and more associate countries फिर globalized game कैसे करेंगे, और रूल आसान करें, बल्कि रूल आप मुश्किल ना करें, कॉम्प्लिकेशन ना डालें। आइडिया अगर आपने गेम को फॉर इंस्टेंस अमेरिकन को सिखानी है या जर्मन्स को सिखानी है, दिस गेम इज कॉम्प्लिकेटेड एनीवे, Yes. टू एनीवे, वो सडनली एक सुपर सब आ जाता है विचों, वो मुझे नहीं पता क्या है, तो आम बंदे को कैसे समझाएंगे। ये आईसीसी के अंडर आती है ना सारी लीग्स दुनिया की, तो ये आईसीसी ने आगे बताना है यार ये मुश्किल चीजें, रैंडम जो आइडिया आते हैं उनको साइड पे करो, जस्ट मेक द गेम सिंपल। आई थिंक एफपीटी जो है, फ्यूचर टॉप प्रोग्राम्स, जब लास्ट बना था इस साइकिल का, वो पिछले वर्ल्ड कप से पहले था, 22 में या 22 के करीब बना था, तो उस वक्त शायद इस टीम की ये स्टैंडिंग नहीं थी। पिछले वर्ल्ड कप ने एक थोड़ा टर्न अराउंड किया है, तो नेक्स्ट एफपीटी जो आएगी उसके लिए मैं मानता हूं कि ये आज का मैच इतना इंपॉर्टेंट है इनके लिए, क्योंकि यही इनके पास They have to, because the last time they went out against England, ये जरा स्कोर कार्ड आपके सामने लेकर आते हैं, 2023 के वर्ल्ड कप का मैच था जहां पे the favorites of the World Cup, England, were defeated by Afghanistan. Take a look at that scorecard. Look at that. इनक्रेडिबल, 284 रन बनाए, बट राइट साइड पे देखिए, आई थिंक द मेन स्टे वहाँ पे आपको राशिद ने जिस तरीके से वहाँ पे गेंदबाजी की है, मुजीब ने गेंदबाजी, स्पिन का देखिए, 8 विकेटें,
between the spinners. निखिल बिकॉज कि उन्होंने 284 की है, बैटिंग चली है तो बॉलिंग चली है। नहीं, और विकेट का फर्क जो पड़ता है वो भी उस स्क्रीन में अगर दोबारा डालेंगे ना तो एक बड़ा अच्छी चीज है। दोबारा अगर वक्त मिले तो डलवाएं। ये जरा दोबारा लेके दोबारा रहिएगा लाइए स्कोर कार्ड जी। प्लीज। दिस ये इज कमिंग अप देखें। अगेन ऑन योर स्क्रीन। हियर वी गो अजय। लेफ्ट में मत देखिए, राइट में देखिए। जी। इंग्लैंड का जो बॉलर है ना, उधर भी एक नाम है राशिद। वो क्या करते हैं, 10 ओवर में 42 देते हैं, उसमें ही जहां 284 पड़े हैं। तो राशिद जो हमारे हैं अफगानिस्तान के, उन्होंने भी 9 ओवर में 37 दिए हैं, 3 आउट किए। Right. तो कंडीशंस जब हैं तो नंबर्स चेंज होते हैं, दोनों के लिए इक्वल होता है। लेकिन बल्लेबाजी, जो पहले बात हुई कि बल्लेबाजी में जब वो सक्सेसफुल होंगे तब जाके उनके गेंदबाज अपना काम कर देंगे। Alright. ये मैं मानता हूं कि बॉलिंग में फास्ट बॉलर हो, स्पिनर हो, और एक ग्रेट एग्जांपल है हमारे लिए, हमारे टाइम में जो थी एक टीम 96 वर्ल्ड कप, विकी की बात नहीं कर रहा मैं, जो हम हारे हैं, जो जीती है श्रीलंका। आप देखें उन्होंने क्या किया है। उन्होंने थोड़ी कोई फास्ट बॉलर्स लगा के उन्होंने उनके पास जो स्किल्स थी उसको कैसे यूटिलाइज करना है। तो सिर्फ एक ही अंदाज से सोचेंगे क्रिकेट में तो फिर आप किसी से पीछे रहते हैं। लेकिन आप अपनी स्किल पे अगर टीम बनाएं और खेलने की कोशिश करें तो एक श्रीलंका ने उस टाइम दिखाया है, और आई थिंक लास्ट टाइम जो अफगानिस्तान ने दिखाया है इंडिया में, कि वो अपने अंदाज से खेलें। और इस बार मेरे को जो दुख लग रहा है कि बल्लेबाजी बढ़ाते चले गए, गेंदबाजी कम कर रहे हैं। All right. With that, it's time for a break here in the DP World Dressing Room. You're watching 10 Sports, our continued coverage of the ICC Champions Trophy. We'll be back right after these messages. And dressing room shots coming from Gaddafi Stadium, Lahore. Gulbadeen's kit bag there with all those SG bats. And it's all set. It's almost getting ready for game time. Glorious nation, victorious team. Nice. Good stuff. A very organized dressing room, I must say. Things very, very nicely Yeah, dressing put up. rooms are better now. You have space to put the bags and organize your bats and your helmet and your shoes. मेरा नहीं है, मैंने लगा था वसीम भाई ये कैमरे के लिए किया हुआ है। अच्छा। थोड़ी चीजें साफ सूफ करके रखी लग रही हैं। Probably, there's every chance. बड़े बड़े गंदे ड्रेस हमारे रूम टाइम देखे हैं। पे 15 की टीम जरूर होती थी, लेकिन 15 किट बैग नहीं आते थे। नहीं, नहीं। आपके उधर होते थे कि बॉलर्स के किट बैग होते थे? नहीं, बहुत नहीं, कम। किट बैग होते थे, उसमें होता कुछ नहीं था। नहीं, बट फिर भी इतना बड़ा बैग नहीं होता। आधे बॉलर तो बैग सरकार देती थी, वो लेके जाना पड़ता था, ठीक है ना। लेकिन उसके अंदर अगर आप कहोगे पैड इधरू मांग ले, बल्ला उसका ले तूने लिया। तो पैड हमेशा मांगे हैं लोगों से। नहीं मांगे हैं, थाई कार्ड भी मांगा है। मैं तो खुद मान रहा हूँ। थाई पैड में गार्ड नहीं मांगा, थाई पैड मांगे हैं, पैड मांगे, बल्ले। एजाज भाई के बल्ले से खेले, छोटा जो हैंडल हुंदा सी ना, उसके साथ खेले, हाथ भी पूरे नहीं आते थे। So I mean that was different time. अब तो even bowlers, So nowadays, bowlers से expectation है अब। हमसे expectation होगा बॉलिंग करोगे, हम कभी बैटिंग का फटे शटे तोड़ते थे हम लोग, जाके बाहर बल्लों को मारते थे, लेकिन हमसे एक्सपेक्टेशन कोई। I had a very funny incident when I joined Lancashire. Obviously, Brits का या Australians का sense of humor बड़ा different है हमारे subcontinent के। तो उस दौरान जब किट्स बैग होते थे, वो बड़े वालों ने हम कॉफन्स कहते थे, बड़े किट बैग, उनमें टायर नहीं थे होते। अब तो टायर आ गए ना, आप खींच के लेके जा सकते हो। तो तब भी कि रिमेंबर टायर नहीं थे होते, आपको कैरी करना पड़ता था। या शोल्डर पे, वो नहीं, शोल्डर पे वो लॉम्बा किट पे पकड़ के दूसरा बैग यहाँ सीढ़ियाँ चढ़े हैं, ऊपर ड्रेसिंग रूम है। और मैं बच्चा सा था तो पहले किट बैग ऊपर से चीज़ें निकालते थे, जूते निकाल लिए, बल्ला निकाल लिया, पैड निकाल लिए। तो मैं रोज़ फील करा मेरा किट बैग बहुत भारी है। तो बॉदर नहीं किया, एक महीना मैं कभी लेके मैच से उतर के लेके आ रहा हूँ गाड़ी में रखने के लिए, मैच के ऊपर जा रहा हूँ हैवी। वो महीने बाद मैंने पता लग गया, मैं नीचे गया हूँ ना इस साइड पे देखने, इतनी बड़ी ईंट रखी हुई थी फ्लैट वाली। ये उनका सेंस ऑफ ह्यूमर था। उन्होंने रखी हुई थी। जब उनको पता लगा, उनके अथरू निकला है, आंसू निकले हंस के। और किसी ने मेरे सॉक्स काट दिए। वो जल्दी जल्दी वापस आया चेंज करने, सॉक्स वो यहाँ तक आगे से आधे काट दी। कभी सॉक्स में मिट्टी डाल देते थे। या मैं भी फिर नहीं छड़िया उन्होंने। अच्छा की कितना फिर दसो बाद में बताऊंगा। What was the retaliation? We have to know. टीवी पे नहीं बता सकता। अच्छा, we have to ब्लैक know जैक खेलते थे बसेस पे ना, तो मैं यक्का हेठा ला लेना उन्ना डबल द बैट्स। Okay, there you have it. Let's take a look at the Afghanistan squad. This is how the team is, Ajay, because this is your team. So you tell us more about this team and what do you think? It's top heavy. What's going on there?
Not top heavy. I think Gulbuddin has done exceptionally well around the world. That has forced them to bring him in, but not utilize it. but he batted सात number नंबर, 8, हाँ, yeah. 7 या 8 नंबर. I think क्योंकि इनमें ना अलग तरह के खिलाड़ी हैं बिल्कुल. You know, बिल्कुल गुरबाज बिल्कुल अलग है. उसकी एक अलग रोल है. जो इब्राहिम ज़ादरान है, वो is out of form or he's not looking as good as he looked. Because he was the mainstay. Right. उसकी इंजरी के बाद जब से वो आया वो तकलीफ हो गई है. फिर रहमत और शाहिदी जो है ना वो एक अपना रोल प्ले करते थे. अब बीच में एक यंग अटल आ गए हैं. उस दिन वो शुरू अच्छा किया उसने, लेकिन तो वहाँ एक फर्क पड़ गया कि वो बीच में एक ही स्टाइल के प्लेयर है. उसकी वजह से क्या है, जो अजमत जिसने टर्न अराउंड किया था, उस वर्ल्ड कप में आप देखें तो अजमत ने साउथ अफ्रीका हो, इंग्लैंड हो, जो बड़ी टीमें हैं जो पेस बॉलिंग के अगेंस्ट है, उनके अगेंस्ट रन उसने बनाए थे. जी. तो वो अब बहुत पीछे हो गया और गुलबदीन भी पीछे. और जो सबसे बड़ा इनका प्लेयर है और प्रेसिडेंट प्यार से बुलाते हैं टीम में, नबी, जो कि एक मर्क्यूरियल प्लेयर है. उसको आप आंकड़ों में कभी नहीं आंक पाएंगे. आंकड़े देखेंगे तो ऐसा लगेगा यार ये क्या कर रहा है इस टीम में. बट उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. Impact. तो जो इम्पैक्ट वाले और इम्पोर्टेंट रोल वाले हैं, वो कहीं ना कहीं इस गेम में जो पिछला एक मैच देखा है आपने, Right. उसमें वो उस वक्त आए हैं जब तक मैच खत्म हो चुका है, आपके हाथ से निकल गया है. तो आई थिंक वो जो सबसे बड़ी वजह है, जिस वजह से वो जो बैटिंग 120 रन से जो आ रहे हैं. ये आई थिंक मोस्ट टीमों में देखा गया है कि ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, नहीं? बिल्कुल. इवन इंग्लैंड को भी देखा है पिछले मैच में कि फ्लेक्सिबल नहीं है. आपने अगर आपकी पार्टनरशिप लग गई है और उसके बाद 20 ओवर रह गए या 25 ओवर रह गए, तो एक सर्टन प्लेयर्स होते हैं जो उस कंडीशन के लिए होते हैं. फिर आप नंबर्स का नहीं सोचते हैं Right. कि किसको जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए. फिर वो बंदा जाना चाहिए जो उस नंबर पे उस सिचुएशन को सूट करता है. आई थिंक इन्होंने भी जो जाट कह रहे हैं ना कि वो ट्रिक मिस किया ना, जैसे पाकिस्तान ने भी मिस किया. मैं समझता हूँ कि जब पार्टनरशिप लग गई थी, जब आउट हुआ तो देन में भी खुश दिल को चांस ले लेते, या किसी को जो मैन इन फॉर्म उसको ऊपर आना चाहिए. बटलर को नहीं भेजा. आई थॉट बटलर शुड हैव कम अप. जो उससे पहले ब्रूक्स को भेज दिया. ब्रूक्स नो डाउट गुड प्लेयर, बट बटलर इज इन बेटर फॉर्म, सो सेंड हिम अप द ऑर्डर. कप्तान खुद है तो आना चाहिए था उसको. उस दिन अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि अफगानिस्तान टीम के साथ एक जुड़ाव है तो ज्यादा डीपली देखता हूँ. उस दिन अगर आप देखें तो स्टार्ट अच्छा नहीं मिला गुरबाज, अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज वो एक ऐसा प्लेयर है कि पता नहीं क्या मिलेगा आपको. तो उस दिन नहीं मिला. फिर इब्राहिम स्ट्रगल कर रहा था. फिर उसने ना एक मारा लप्पा, क्योंकि स्टेज ऐसी हो गई थी, वो आउट हुआ. फिर कप्तान आगे साथ में रहमत थे, तो वो कप्तान जो है वो सॉलिड प्लेयर है. वो नहीं है कि अब अगर आपको तेजी करनी है और आपके पास गुलबदीन है, आपके पास नबी है, आपके पास राशिद है, फिर उसका जाना नहीं. और अगर जाना है तो सॉलिडिटी के टाइम जाए. जाके तीसरी गेंद पे निकल के अगर लप्पा मारना था, Right. फिर वो उनको भेजे जो वो मार कर सकते हैं, सकते जो हैं. मार तो आई थिंक जो जैसे गेंदबाजी में मैं कह रहा था कि आप अपनी स्किल पे खेलेंगे तो बेस्ट आपका निकल सकता है. लेकिन अगर अपनी टीम में आपको पता है, और मुझे पता है इस टीम में बड़ी ओपननेस है, एक दूसरे को बोल पाते हैं कि यार तेरे को शॉट नहीं लगती, तेरे को डिफेंस नहीं होता, जो भी है. और हर एक संपूर्ण नहीं होता प्लेयर, कोई ना कोई कमी होती है. तो जिसकी जो जगह बनती है वो वहां पे सेट नहीं है इस वक्त. इसलिए ये इंस्पाइट ऑफ गुलबदीन जो 8 नंबर आया, 7 नंबर पे नबी और 9 पे तो फिर राशिद है. तो ये बैटिंग लाइनअप जो है, और अजमत 7 पे, तो ये बैटिंग इतनी लंबी होने के बावजूद अगर आप 50 ओवर नहीं खेलें और 100 रन से पीछे रह गए किसी मैच में, तो उसकी वजह यही है कि ये आप अपने जिसकी जो जगह बनती है सिचुएशन के हिसाब से, नंबर नहीं मैं कह रहा, हाँ. वहां पे आपने यूटिलाइजेशन में कमी करी और हर एक पे प्रेशर डाल दिया. जो मार के खेल सकता है उसको रोकने का काम मिल गया, जो रोक के खेल सकता है उसको मारने का काम दे दिया. ये बड़ा important. But Jonathan Trott has been with the team now for some time, Nikhil, and he would know all these characters. Like Ajay has like such a great insight कि इसका ये रोल होना है, इसका ये रोल है, ये लोग अपनी जगह पे सेटल नहीं हुए. So wouldn't Trott be going through this in his mind कि यार इसको ये खिलाना है, वो खिलाना है, they're not doing it, communication gap क्या हो रहा है? बिल्कुल होनी चाहिए. और जिस तरीके से अजय भैया ने इतना टाइम स्पेंड भी किया है जोनाथन ट्रॉट के साथ, और क्योंकि आप हेड कोच हैं, यू आर लिटरली समबडी हु इज गाइडिंग द टीम अलोंग. आई एम श्योर द सीनियर्स आर देयर. I think he's a fabulous coach in terms of discipline, dedication, planning, ये वो. और हर एक का अपना स्टाइल होता है ना, जैसे मारना और रोकना. Yeah. I think he comes from a background of a game where they don't believe in all this. ये हमारे इंडिया पाकिस्तान में हम इतना सोचते हैं कि यार, और बोल भी पाते हैं एक दूसरे को. आप देखें, अगर ऑस्ट्रेलियंस देखें, साउथ अफ्रीकन देखें, they don't believe कि यार आप में कोई कमी हो सकती है. You are in the team, you should be able to do everything.
ये सेट है, वो उसमें बिलीव करते हैं। और मेरे लिए यहाँ बैठ के आसान है बोलना, जब आप टीम चला रहे होते हैं बहुत ज्यादा प्रेशर्स होते हैं। तो जोनाथन ट्रॉट का जो स्टाइल है, आई डोंट थिंक ही लाइक्स डूइंग ऑल दिस। पर इसके अंदर एक चीज और है ना कि जोनाथन ट्रॉट, चलिए एक टीम ऐसे चल रही हो, बट अफगानिस्तान टीम इज अ टीम दैट इज बीइंग रन लिटरली बाय 4 सीनियर प्लेयर्स। राशिद खान, मोहम्मद नबी, जिस तरीके से वो टीम चला रहे हैं। गुलबदीन नायब 8 नंबर पे आ रहे हैं, आप इतना बड़ा स्कोर का चेस कर रहे हैं, बीच में बिल्कुल ही वो और उसका डिफेंस बड़ा अच्छा है गुलबदीन नायब का। और भाई ILT20 में, डीपी वर्ल्ड ILT20 में कमाल के मैचेस उन्होंने जिताए। 3 नंबर पे बैटिंग आके 4 नंबर पे, और जी हाँ फॉर्मेट 20 ओवर का और था, मुश्किल विकेटें थी, मुश्किल विकेटें एंड अच्छी बॉलिंग के खिलाफ रन बनाए। सो आई एम लिटिल सरप्राइज। चलिए जोनाथन ट्रॉट ने नहीं देखा, बट बाकी के जो तो सीनियर प्लेयर वो कह सकते हैं यार गुलबदीन असी थोड़ा बेटर यूज कर देना, इनू होते भेज दो, 9 नंबर तक बैटिंग करनी, क्या करनी। लेकिन आई थिंक मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि जैसे गुलबदीन को वो एज अ बॉलर ट्रीट कर रहे हैं। ओके, यू नो एज इज एन ऑलराउंडर, Yeah, बट उसको एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर ट्रीट कर रहे हैं। जो हमने अभी रिसेंटली देखा है वो है बैटिंग ऑलराउंडर। बैटिंग बहुत बेहतर कर रहा था बॉलिंग से। यहाँ T20 क्रिकेट में या इवन वनडे क्रिकेट में अगर आखिरी ओवर में आते हो तो कटर शटर करके आप 2-3 ओवर 4 ओवर उससे निकलवा सकते हो। लेकिन अगर आप बोलो कि जी मुझे बैटिंग करानी है तो ये बंदा है जो ऊपर खिलाने वाला है। क्योंकि फॉर्म की मैं बात करूँ, फॉर्म पे देखी जाए इसको अब 4-5 पे खिला सकते हैं, आराम से खिला सकते हैं। Look at that ODI record that he has on your screens right now. 87 games, got 1,327 runs. Strike rate is decent. इसको देखेंगे तो प्रॉब्ली कहेंगे कि नहीं यार ये तो किसी नंबर पे भी नहीं आता। बट एक्चुअली फॉर्म देखनी है ना आपने, फॉर्म देखें, रीसेंट फॉर्म देखें, तो उसमें मैं बात कर रहा हूँ। और ये देखें तो इसलिए शायद उसी में आंसर भी मिल रहा है कि क्यों उन्होंने नहीं सोचा होगा, क्योंकि 80-90 मैचेस हैं, एक भी 100 के करीब स्कोर नहीं है। स्कोर 5-50 है, तो इम्पैक्टफुल प्लेयर है, लंबे स्कोर नहीं करते। और यू नो यहाँ से फिर वही वाली बात है, आसान है। बट आप सोचिए कि पिछले साल आपका वर्ल्ड कप इतना अच्छा गया है, ये जो ओपनर है उनको आप नहीं हटा सकते। रहमत शाह आपका मेन स्टे था, कप्तान सबसे बड़ी एवरेज करके 4 पे। अजमत ने इतने लंबे स्कोर किए और रन बनाए हुए हैं, अब उन 5 से आगे भेजना मुश्किल है। उसके बीच में आपने एक यंगस्टर पहले ही 3 पे डाल दिया है, तो 6 से पहले पारी नहीं आती। जाट यही फर्क है वेस्ट इंडीज का और हमारा, यही फर्क है कि हम नंबर्स में कहीं ना कहीं घूम जाते हैं। हम ये नहीं देखते, हम कई दफा ये भी देखते हैं कि यार इसने पिछले साल बड़ा अच्छा किया था। पिछले साल का खेल ही नहीं है, खेल है कि ये पिछले हफ्ते क्या किया था या पिछले महीने क्या किया था। फॉर्म ज्यादा जरूरी है। मैं समझता हूँ कि अगर फॉर्म अच्छी लगी हुई है, यूटिलाइज दैट। दिस इज अ टीम स्पोर्ट, इट्स नॉट एन इंडिविजुअल स्पोर्ट कि आप जी अच्छा नहीं इसको नहीं उसको। बट टीम स्पोर्ट्स में आप जो मोहरा जहां फिट हो रहा है उसको वहीं लगा दिया। मोहरे की बात की तो एक मोहरा जो फिट है, जिन्होंने पिछले मैच में 90 रन बनाए, रहमत शाह, बड़ी जबरदस्त बैटिंग की लेकिन उन्होंने पिछले गेम के अंदर। इनक्रेडिबल, बट सिर्फ अनफॉर्चुनेट कि उनका साथ कोई नहीं दे पाया। जिस तरीके से वो हैंडल कर रहे थे मीडियम पेस, ही जस्ट वेटेड फॉर दोज डिलीवरीज। So I think against pace and spin, somebody you saw batting, he didn't get perturbed by the pace जो हम लोग बात करते हैं ना, as a subcontinent player, he never got perturbed and just waited. एक spin के खिलाफ जिस तरीके से कदमों का उन्होंने इस्तेमाल किया है, I liked the way how he went about his work in terms of finding the pockets where he was going to get his runs. Interesting feature there. Waqar, your thoughts about this gentleman? I think he's a very improved bowler. पिछले 6 महीने साल से जो फ़र्क दिखा है ना, जो ILT20 पिछले साल भी किया था, इस साल भी, हालांकि पिछले साल भी इसने विकेट्स लिए थे, लेकिन इस साल जो मेजर तब्दीली इसकी बॉलिंग में देखी है ना, कोई वही जो बॉल वसीम भाई बेहतर बताएंगे, लेफ्ट आर्मर कि जी वो जो गेंद राइट हैंडर को जो बाहर निकालता था ना, ये पहले पिछले साल इतना नहीं दिखा था और ट्राई करता था लेकिन वो क्रॉस सीम से जाती थी। इस दफ़ा देखा है कि ये पूरी सीम के साथ बॉल को बाहर निकालता है और इस तरफ तो राइट हैंडर को तो आता ही आता है, इसका नेचुरल है वो। तो आई थिंक इसने वर्क किया, अपनी रिस्ट पे काम किया है। वसीम भाई प्रॉब्ली फिर मैं कहूँगा कि दोबारा बताएंगे कि जो रिस्ट है उसको कंट्रोल करना पड़ता है। और जो इसकी सबसे खूबसूरत इसकी बॉलिंग की जो मुझे बात लगती है वो है इसका जो टाइम देता है ना, हवा में टाइम देता है। जो आप जंप करते हो आके, यू गिव लिटिल बिट मोर टाइम इन द एयर, यू गेट इन पोजिशन एंड देन यू कैन विप थ्रू। ये बेसिकली मैं जेवलिन की बात करता हूँ कि जेवलिन में भी ये होता है, यू जस्ट रन इन, ब्रिंग द मोमेंटम इन एंड देन व्हाट यू डू, यू जस्ट पुल बैक, लोड एंड देन यू लेट गो। तो ये इसकी जो चेंज और जो तब्दीली मुझे दिखी है वो यही है कि ही इज़ गिविंग अ लिटिल बिट मोर टाइम इन द एयर
and then pulling that string back, and then that और bucket पिछले race मैच में हमने नोट किया था कि आफ्टर फर्स्ट स्पेल एक तो इसकी पेस कम हो गई थी, बहुत ही कम हो गई थी, और ही वाज जस्ट मिलिट्री एक्सप्रेस ऑल्दो इज गॉट पेस, बट वनडे क्रिकेट फारूकी को यही एडवाइस करनी पड़ेगी कि यू हैव टू इम्प्रूव योर फिटनेस फॉर वनडे क्रिकेट, बिकॉज उसमें आपने 10 ओवर करने हैं और उसमें 4 या 5 पहले करने हैं, दरमियान में 2 ओवरों के लिए आना है, आखिर में 3 करने हैं. सो इफ योर फिटनेस इज सुप्रीम then you'll be able to cope and be consistent with your pace. So last game I noticed कि उसकी pace भी कम हो गई थी, ज़्यादा variations पे जब बंदा हर 3 गेंदे बाद हर 2 गेंदे 6 में से 2-3 वेरिएशन करे तो समझो कम हो गया. लेकिन आप उसके रिस्ट का आपने उसका नोटिस की थी कोई चीज़? नहीं, रिस्ट में आई सपोज बीइंग अ लेफ्ट आर्मर, पहले तो जो वकार आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि अब राइट हैंड है मेरे सामने तो मैं रिस्ट को ऐसे हल्का सा लॉक करूंगा, ये है ना, तो मैं ये अगर मेरी सीधी है तो ये हल्की सी लॉक है अंदर, ये जब मेरा बाजू आएगा वो पूरा ऐसे आएगा, बल्कि फ्रंट आर्म यूज होगा, जब फ्रंट आर्म मेरा यूज होगा तो मैं थोड़ा साइडवेज जाऊंगा, जब साइडवेज जाऊंगा तो जब मैं नीचे आऊंगा, इसको नीचे करूंगा तो अपने आप मैं पिविट होऊंगा, पिविट से मुराद ये मेरा हिलेगा, जब ये हिलेगा तो शोल्डर के साथ ये बॉल अंदर आएगा. और आउट स्विंग के लिए फारूकी ने क्या किया है, उसने सेम थिंग, उसने इसको थोड़ा ये किया है, ये फर्स्ट स्लिप की तरफ, और रिस्ट को थोड़ा बाहर किया है, एंड देन यहाँ से आके उसने हल्की सी फ्लिक की है. फ्लिक यहाँ होती है हल्की सी, पूरा ऐसे नहीं होता, हल्की सी फ्लिक यहाँ से होती है, एंड दैट्स व्हाट आई थिंक आमिर को मैंने देखा है, और शाहीन इज ऑल्सो ट्राइंग, कर रहा है वो, बट शुरू में जब ये करते हो ना एज अ बॉलर, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, अगर आपकी नेचुरल स्विंग फॉर राइट हैंड की आउट स्विंग है, अगर आप इन स्विंग सीख रहे हो तो इन स्विंग पे आपकी पेस थोड़ी कम होगी शुरू में, तो फर्स्ट 4-5 मंथ्स, बिकॉज आपके वो मसल्स जो हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं हुए, तो करते रहेंगे तो आपकी पेस इक्वल हो जाएगी इवेंचुअली, बट शुरू में नई स्विंग सीखने के लिए थोड़ी पेस कम होती है. You think, sorry, are we going to have to break? Go ahead. You think, Wasim bhai, looking at Shaheen also, and him and some bowlers, क्योंकि ये T20 ज़्यादा खेलते हुए आ रहे होते हैं, तो यू थिंक ये ओवर ट्राई भी करना चले जाते हैं कि जी क्योंकि विकेट लेनी है तो फिर ज़्यादा आगे फेंकना शुरू कर देते हैं, या यू थिंक दैट्स द राइट वे टू गो? आई थिंक फॉर शाहीन ही डज ट्राई अ लॉट विद द न्यू बॉल, यस, बट नाउ एवरीबॉडी नोज. अभी उस दिन वो क्रिकेटर्स भी आई थिंक शो पे हमारे पे उनका इंटरव्यू आया था कि हमें पता है कि इसने शुरू में आगे यॉर्कर ही करने हैं, देन एज अ बॉलर यू गो प्लान बी, ट्राई योर कपल ऑफ डिलीवरीज अगे, पर उसके बाद आइडिया है कि अगर मुझे पहले ओवर में 2 चौके पड़ गए हैं ना, सो मैं अब बैक फुट पे हूँ, मैं बचने जा रहा हूँ बजाय कि मैं विकेट लेने जाऊँ. सो वो बैटर बैठा है यहाँ पे, वो बताएगा कि प्रेशर जो बिल्ड करना है आपने बैट्समैन पे, वो यही करना है कि अगर आप पहले ओवरों में, अगर आप पहले 1 में आपको विकेट नहीं मिले, स्विंग का पता लग जाता है एज अ बॉलर, पहले 2 गेंदों में 3 गेंदों में यू असेस कि इस पिच पे, इस कंडीशंस पे कितना स्विंग होना है, अगर अंदर आना है कि नहीं आना, अगर अंदर नहीं आना देन द प्लान बी इज गो क्रॉस एंड हैव अ स्लिप बैक ऑफ अ लेंथ, वो कट ना खाओ, कोशिश करो वहाँ पे, अगर अच्छा बॉल है एज लगेगी सिंगल हो जाएगा. और एक रैंडम फील्डर आजकल आ गया है T20 में, तो आई कैन अंडरस्टैंड, वनडे क्रिकेट में थर्ड मैन जरूरी है, वो पॉइंट का फील्डर पीछे थर्ड मैन ऊपर रख के आउट स्विंग करोगे तो वो चौका ही है. तो ये छोटी छोटी चीजें एज अ बॉलर आपने खुद असेस कर रही है. नाइस. All right, keyword, mehnat. With that, we're going to take a break here on the DP World Dressing Room. When we come back, there's more. Stay with us. Welcome back, and shots out of Gaddafi Stadium. It is a windy day and scattered clouds around in Lahore, where England are going to clash with Afghanistan. We talk about the Afghanistan team. This is the DP World Dressing Room. I am Fakhri Anam, and this is 10 Sports. Let's talk about well, the weather looks really good. Yeah, I was about to say, it looks Weather a proper मौसम बड़ा cricketing weather. 25 degrees. Yeah. Good golfing weather too. सिर्फ एक डर था, वो जो 51% आपने नहीं देखा एंड पे जो लिखा हुआ था, क्या रेन चांस? रेन का ये 50-50 है ना? देख लिया. 50-50 है.
No, I think for cricket, actually, a good weather is absolutely right. Because 51%. Too hot is also not nice. And too cold when is it's also freezing, also it's horrible. Yeah. This is just perfect. You like to be in the sun and play And this rain great is game. always welcome. I mean, at least in my world, rain is welcome because 51% chances also mean 51% chances of pakoras/bhajia. Hey, I love Yeah. that. I love that. Now we're talking. 100%. 100%. 100%. I'm over pakoras. वो तो हमारे कंट्रोल में है 100%. जब मर्जी ऑर्डर करके मंगा लीजिए आप. ये तो है. All right, let's take a look at the English squad. Nikhil, take us through this English team. We bring it up on your screen. देखिए कमाल की टीम है. I mean, they got 351 runs last time around, and we spoke about this. That some of the main guys जो कहते हैं ना बड़ी तोपे, उनके बगैर भी 350 रन बनाए. जिस तरीके से एक प्लेयर को स्टार्ट मिला बेन डकेट और वो उसने 165 रन बना दिए. बट यू गॉट पीपल लाइक बटलर इन देयर, हैरी ब्रोक, लियम लिविंगस्टन. दीज गाइज येट हैड टू फायर एंड मे बी दे वुड हैव बीन थिंकिंग ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यार हमें शायद तो 20-25 रन एक्स्ट्रा बनाने ज़रूर थे. बट इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि जो बॉलिंग है 350 रन बनाने के बाद वो बॉलिंग चली नहीं. आज क्या कुछ बॉलिंग चेंज होगी? की प्लेइंग 11 आई थिंक इन्होंने अनाउंस कर दी है शायद. देयर इज वन चेंज. कास की जगह दे पुटिंग रेहान अहमद, Yes. हु इज आल्सो अ वेरी वेरी गुड क्रिकेटर. वसीम भाई इतने बॉलर्स की लाइन देखी थी. कोई पता नहीं 15 बॉलर थे और उसके बावजूद 350 उसके बावजूद 350 करा लिया. That's a different ball. पूरी लिस्ट में 3 ही बैट्समैन लिखे, एक ऑलराउंडर, 4 कीपर. आई थिंक वो कीपर को ऑलराउंडर नहीं कंसीडर करते. आई थिंक कीपर्स को भी ऑलराउंडर में जाना चाहिए क्योंकि 2 चीजें करते हैं. द बिग मैन इज रिलैक्स. But he's Look at happy that. because he's Big, going to have big company smile. spin alongside. And what a cricketer. Yes, indeed. What a What a cricketer. cricketer. Proper brand ambassador of England. Get wickets in every format. Got wickets in every format. अब रेड बॉल आई थिंक ये खेलते नहीं है, पर अब T20 ले ले, वनडे ले ले, मिडिल में आके always get. He's a wicket taker. Obviously the experience, the variation, the googly, the leg break, the flipper. और फिर एक उन्होंने नया बॉल, नया तो नहीं कहूँगा, एक बॉल सीखे जो लगता है गुगली या लेग ब्रेक पर जाता सीधे है और वो एक्स्ट्रा थोड़ा सा बाउंस होता है. वो कैसे करते हैं ये Top लेग spin. ब्रेक? Here you go. Nikhil coming up. ओवर स्पिन, टॉप स्पिन. जिस तरीके से आई मीन कोई भी लेग स्पिनर जब बॉल डालता है इट्स थोड़ा सा हाथ बाहर चला जाता है. इफ यू थिंक अबाउट कि 2 बजे से 10 बजे तक आपने इस तरीके से स्पिन डालना है. जो पाजी जिस बॉल की बात कर रहे हैं वो रिस्ट पोजीशन और थोड़ी सी सीधी हो जाती और है. सीम पे जाता है. जी भाई. जब आपका बैक ऑफ द पाम इज फेसिंग योर फेस एंड द सीम पोजीशन सीधी खड़ी रहती है एंड देन यू ट्राई एंड गेट दैट बॉल टू गो ओवर स्पिन ऑन दैट. अब इसी को जब और थोड़ा सा आप घुमा देते हैं, द बैक ऑफ द पाम फेसेस द बैट्समैन, तो फिर वो गुगली हो जाती है. तो इट्स अ डिफरेंट वेरिएशन कि ये सीधा सीम उसके ऊपर ऐसे चलता है तो एक्स्ट्रा बाउंस होता है. मैंने नेट में बड़ी कोशिश की है कि मैं ये ना जो गुगली करता है लेफ्ट आर्म भाई वो कहते हैं ना आपके वो मसल ओ इट्स वेरी डिफिकल्ट. आप इस तरीके से डालते हैं क्यों क्या यू फील अ लॉट ऑफ स्ट्रेच ऑन द रिस्ट. तो फिर ट्राई क्यों कर रहे हो? नहीं, वो नेट में जब थक जाते हो, बोर हो रहे होते हो तो आप कभी ये कभी ये. आपने प्लीज एक मेरा काम करना है. हाँ जी, पूछिए. अब जब हम रात को आएंगे ना प्रोग्राम के लिए, मुझे एक चीज याद करानी है आपको. बताएं. वो ये आपको मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा इस पे. हाँ. मुशी भाई को भी पता चल जाएगा. मुशी भाई वेट भी करेंगे इस अगले शाम वाले प्रोग्राम का. उनका एक कहना है और उनकी एक बात है जो मैं जरूर वो जो आपको उसने बता शेन दूं. वॉर्न के बारे में बताई थी. मैं शाम के I write it down. मुझे वो स्टोरी याद है. याद है ना? आप दोनों ये याद मुशी रखिएगा स्टोरी. भाई यू आर वन ऑफ द गोट्स एंड Yeah. ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स. मुझे पता है भाई. मुशी एक और लेटर तैयार रख. लीगल नोटिस. वकील बहुत बिजी चल रहे हैं मुशी भाई के. Alright, that. But it's a great moment for the young spinner to be bowling alongside Adil. जैसे पाकिस्तान का वो 11 में खेलेंगे, तो एक मेंटोर जब साथ में वो बॉल डालता है उससे बड़ा फर्क पड़ता है. And I'll tell you where I'm coming from. I think if I'm not wrong, अजय भी अब कप्तानी कर रहे थे न्यूजीलैंड वाले मैच में. And it was my second tour and वर्ल्ड कप से पहले वो न्यूजीलैंड वाला टूर हमारे लिए बड़ा. वर्ल्ड कप से पहले 99 वर्ल्ड कप से पहले भाई. तो एज अ फिंगर स्पिनर हमारे लिए वो बड़ा जरूरी टूर था. So how somebody helps you in the field, it makes a big difference because it gets you to think outside. कि उधर से अगर अनिल कुंबले डाल रहा है, सामने अगर क्रिस केन्स खेल रहे हैं, तो आपको पता है कि अगर उधर से 2-3 रन आए हैं तो भाई 24 संभालियो तेरे पीछे भागेगा. तो विद द स्पिन वो खेलने को. सो देन एज अ बॉलर देन यू आर ऑटोमेटिकली थिंकिंग कि यार ये बैट्समैन मेरे को कहाँ मार सकता है, कहाँ नहीं मार सकता.
then you change your plan. So I think that will help the young spinner bowling with Adil as well. कि किस स्टेज में आप बॉल डाल रहे हो एज अ बॉलर उस सिचुएशन में आपने क्या करना, व्हाट डज द टीम एक्सपेक्ट फ्रॉम यू. सबसे खूबसूरत जो चीज़ आदिल रशीद ने की है ना, क्योंकि आदिल रशीद की अगर आप फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड देखेंगे तो उसके बहुत सारे रन्स भी हैं. 1100 है. 1100 10 साल तो सुन रहे हो 1100 ने, मगर जब बैटिंग करने आया आदिल, आई एम सॉरी, 3 स्कोर नहीं आया तेरे को. देखिए लेकिन उसकी सक्सेस का राज क्या है कि वो जो 1100 जो उसी में बता रही है उसने आज तक परफॉर्म नहीं किया, वो घर छोड़ के आता है. वो नहीं साथ लेके आता, वो नहीं सोचता कि मैं बैटिंग कर लूंगा. वो बोनस है, अगर मैं कभी 10-15 रन कर दूंगा, दैट विल बी बोनस फॉर द टीम. दैट इज व्हाई हिज सक्सेस हैज कम दिस फार. लेकिन ये यंगस्टर जो है ये भी बैटिंग करता है. रेहान ओपन करता है, रेहान ओपन करता है, याद रहे. तो पिछली दफा जब पाकिस्तान के टूर पे आए थे, इनकी बड़ी बातें हुई थी कि इज अ वेरी गुड स्पिनर, स्पिन भी करता है बॉल को अच्छा, इसका ड्रिफ्ट भी होता है. वेरी यंग देन, वेरी यंग. लेकिन क्या है कि जब आप यंग होते हो ना तो आप कहते हो कि यार मुझे बैटिंग भी, शायद आपके साथ ये हुआ कि आप पड़ जाते हो अपनी बैटिंग में कि मुझे बैटिंग भी आती है. लेकिन आपका जो सुप्रीम या प्रीमियर जॉब जो है ना, उससे कहीं ना कहीं आपको खुद भी नहीं फील होता, एज अ बॉलर नहीं फील होता. आपका कहीं ना कहीं फोकस जो होता है ना वो हट जाता है, वो बंट जाता है. अगर आपने एक चीज में अच्छे हो उस पे आपका 90% फोकस उस पे रहना चाहिए, 10% आप बैटिंग में डालेंगे. प्राइम एग्जांपल ऑफ दैट. Yeah. रीजन अब लॉट ऑफ अब तो रिटायर हुए डेकेड्स हो गए हैं, जब इवन खेल भी रहे थे बड़े लोग कहते थे यार तुमने अपनी बैटिंग के साथ ज्यादती की है, यू गॉट गो मोर रन्स, बट आई वांटेड टू बी अ बॉलर फर्स्ट हु कुड बैट अ बिट. That was my mindset. Yeah. Exactly what Waqar is saying. Yeah. ये शुरू से मेरे ज़हन में आ गया था कि मैंने एक चीज़ में स्पेशलिस्ट होना है. I don't want to be आधा तीतर आधा बटेर. Nice one. Nice one. And another, just to add to this list of greats, Anil Kumble, another great one in his own art, was a batsman. He got 100 against Pakistan under-19 test match. Yeah. Okay. You know, so वो as a batsman होता था, वो bowling करता था, but जो आपने बोला ना कि he must have made up his mind कि नहीं यार इसमें, क्योंकि आपका mind, बॉडी जो भी है, फिटनेस हो जितनी भी हो, आपकी एक लिमिट होती है. Yeah. So I think if you put in all your eggs in one basket, you can probably improve that much more. और फिर आप तीतर और बटेर की तरह नहीं रह जाए. So he is another great that who was a batsman. Do we by any chance have Rehan's record in Pakistan? I mean, when he came into tour, what all did he? I don't know if our team has that or not. But if we could take, if we could find it, it'll be really interesting. No, Rehan did quite well against Pakistan. उन्हें उधर टच चाटते लाए सन उनको आज बैठा. नहीं एनको से तो नजर आ रहा है. बट मैंने वो पहले पढ़ के ना जो स्टैट्स आते हैं उसमें मैंने वो पूरे अभी निखिल कह रहा था तो इसका मतलब है कि फट्टे ना तोड़िए. फट्टे तो बाहर लगे थे. मैंने कहा नहीं, फट्टे टूटने चाहिए देने, फट्टे लगे नहीं होते. I think mind probably you are absolutely right. फट्टे तोड़ने का तो मजा अपना है, वो जरूर टूटने चाहिए. नहीं he has happy memories against Pakistan लब गया. उसकी जो बात की ना तुम्हारा लेग स्पिनर जो है ना, वो बॉलर तो अच्छा था. तो कहाँ गया वो फिर? नहीं वो तो आप बताएंगे. मैं यही बोल रहा हूँ ना, मैं यही बोल रहा हूँ. ब्रिलियंट फील्डर भी था सर. आप you know शादाब. Yeah, still is a brilliant fielder. I believe he played first class cricket and he's bowled about 200 plus overs in first class. अब performance का I don't know, but for leg spinner का ये, the more he bowls the better he becomes. Seki has been working really hard with him. Saqlain Mushtaq. And I'm sure he's improved. I mean, Seki जैसा कोच बहुत rare आपको मिलेंगे. Spin bowling coach. और wonderful to see that कि अगर वो दोबारा अपना फोकस बैटिंग से हटा के, क्योंकि पीएसएल ने थोड़ा बिगाड़ दिया इसको, कभी 3 नंबर पे, कभी 4 नंबर पे, फिर पाकिस्तान में भी इसको ऊपर भेजा जी सिक्योरिटी के लिए कि अच्छा एक बैट्समैन बचा लो, थिंग्स आर कंडीशंस आर हार्ड. And he scored a couple of 50s in that time. वो आपको दिमाग में बैठ गया कि यार मैं तो बैटिंग कर लेता हूँ, मुझे बॉलिंग से फोकस है. Question quickly to you as a batter, sorry. जी. कि अगर जैसे विकी ने कहा कि हार्ड कंडीशन में उसको भिजवा दिया, अगर हार्ड कंडीशन है तो उसमें बैटिंग बेहतर कौन करेगा, प्रॉपर बैट्समैन या मेकशिफ्ट बैट्समैन? नहीं, बट चांस लिया होगा ना किसी को. सिक्योरिटी. आई थिंक उसका कॉन्फिडेंस चला गया, क्योंकि स्किल तो क्योंकि लास्ट वर्ल्ड कप में मैं लास्ट देखा उसको चेन्नई में जब हम खेल रहे थे, सवेरे नेट में लगा हुआ था, क्योंकि उस टाइम उससे गेंद नहीं गिर रही थी, लेकिन फिर भी खिला रहे थे.
तो कई बार ये भी हो जाता है ना टीम में, अगर कोई बंदा जस्ट आउट ऑफ फॉर्म है, उसको खुद कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन जो टीम चला रहे होते हैं वो कहते हैं यार इसको नहीं खिलाएंगे तो ना जवाब देना पड़ेगा. Not many leaders like him who could drop you when he thought that you weren't doing well. I think उसके साथ from outside I feel कि बंदे के साथ ना जाती हो गई है. जब वो अच्छी नहीं भी कर रहा था ना, तब भी आप उसको खिलाते चले गए क्योंकि वो बैटिंग करता था, वो फील्डिंग करता था. तो आपने एक शॉर्ट टर्म गेन के लिए एक लॉन्ग टर्म जो आपका प्लेयर बन सकता था, उसको आपने बिल्कुल डाउन एंड आउट कर दिया. एक और चीज, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो नाइट वॉचमैन है, ऑल्दो आई लव गोइंग एज अ नाइट वॉचमैन इन माय करियर, जो कि बहुत कम हुआ, एक आधी दफा हुआ, और तेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं था, और मैं सरवाइव भी नहीं की था ना. एग्जैक्टली, आई डिड सर्वाइव, सो दैट्स फाइन, आई एम हैप्पी, एटलीस्ट आई गॉट द अपॉर्चुनिटी, दैट वाज द की पॉइंट. लेकिन मुशी गॉट फ्यू अपॉर्चुनिटीज. एनीवे, सवाल ये है कि यही बात पे कि जो मैं कह रहा हूँ कि सिक्योरिटी के लिए आप भेज देते हो किसी ऐसे प्लेयर को जो बॉलर होता है, आप कहते हो यार ये टाइम निकाल दे, तो ये नाइट वॉचमैन वाला क्या सिलसिला होता है कि व्हाई नाइट वॉचमैन? आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप नाइट वॉचमैन क्यों भेजते हो? ज्यादा अगर वो आउट हो जाए ज्यादा प्रेशर है. दो मुझे ये नहीं समझ आ रहा. बैट्समैन अंदर भी जाता है. टेस्ट मैच में शाम की बात कर रहा हूं. देयर इज थ्योरी है अलग अलग, क्योंकि अगर 2 ओवर बचे हैं तो मैं समझ सकता हूं. क्यों उसमें भी क्यों यार? क्यों? आई थिंक बैट्समैन का मैं बताता हूं क्यों. क्योंकि एक बैट्समैन के माइंडसेट बता रहा हूं, और इसमें शाम के 2 ओवर रहते हो, मैं तो नहीं ना करता कि मैं 2 ओवर ना कराऊं. नहीं, मैं तो कहता ले आओ यू एट द टाइम में गए. नहीं, क्योंकि शाम होए सवेरे होए, जो नॉन बैट्समैन है उसे की फर्क पैंदा है. उसने खेलनी 6 बॉलें, 8 बॉलें, 10 बॉलें, बट बैट्समैन का क्या है? ये है इनका ट्रस्ट कम है. नहीं, लॉजिक दे रहा हूं. इतना ट्रस्ट है बॉलर्स पे, इनका अंदाजा. नहीं, लॉजिक दे रहा हूं. एक अच्छा बैट्समैन और एवरेज बैट्समैन और बेकार बैट्समैन में क्या फर्क है? कि आपका अच्छा दिन जो है वो आप कितना लंबा ले जाते हो. जैसे वनडे में भी देखो तो 25, 40, 150, टेस्ट मैच में भी वो होता है ना, 40 बनाने वाला, 60 बनाने वाला, 200 बनाने वाला. अब 200 बनाने वाला आदमी शाम को जाएगा, 2 ओवर खेलेगा, और आउट तो कभी भी हो सकता है, अगले दिन भी हो सकता है, लेकिन वो खेल गया तो उसका प्लस नहीं है ना. अगले दिन सवेरे जब वो जाएगा और अगर वो 2 ओवर खेल गया तो वो वहां से 250 तक लेके जा सकता है. जो आउट हुआ कल शाम को या जो सरवाइव करके आया, उसकी अपसाइड को अगर आप देखते हैं, वो एक लॉजिकल रीजन है. कई बैट्समैन है तो नहीं. मैं वैसे तेरे जवाब से सेटिस्फाई नहीं हुआ हूं. नहीं, तो मेरे से कब सेटिस्फाई हुआ है? नहीं, मेरा ख्याल है 96 में बहुत सेटिस्फाइड थे आप. वो तो उस दिन भी सेटिस्फाई. 96 में तो इसने सेटिस्फाई करके भेजा था. कहा था ठंड पैगी. मेरे कहने का मकसद ये है, आई एग्री, आउट होने के एक बॉल है. जो बंदा 200 कर सकता है, 150 कर सकता है, उसको आखिरी के शाम के 2 ओवर क्या क्यों प्रॉब्लम डाल रहे हैं? प्रॉब्लम नहीं है. वो जो 200 कर सकता है, 150 कर सकता है, वो 0 भी करता है ना कभी ना कभी. तो लेकिन सुबह कराना चाहता है, शाम को नहीं. तो वो शाम को नहीं कर सकता ना 150, 200. अगर वो सरवाइव करता है वो 0 से, सवेरे करेगा तो उसके पास पूरा दिन है, पूरी लंबी पारी, क्योंकि बिल्ड करता है. अच्छा, शाम को बिल्ड करके कुछ बनेगा नहीं. These batters have always got excuses. As if bowlers, एक मिनट, as if bowlers have none. Batter gets one chance. Yes. एक चांस, वो एक गलती करेगा, उसने जाके ऐसे ड्रेसिंग रूम में बैठना है, जो मौज की चीज है. लेकिन जो बॉलर है वो 5 चौके खा चुका है, 5 छिक्के खा चुका है, लेकिन अभी भी वो आपको आउट करके रास्ता दिखा सकता है इसी ड्रेसिंग रूम. लक भी तो साडा ही टूटदा है ना, तुम्हारा थोड़ी. किने किया ऐसी बॉलर पर रन? Well, this is a किसी ने किया? debate of all ages at times. Who basically takes the load? The bowlers or the batsmen? Thank you, guys. That was really very, very, very insightful. Wasim and I would absolutely disengage in that conversation. What's the social media saying? We'll find out right after this little break. But we go to a break, leaving you with some images coming out of the Lahore. And look at that, Joss Butler getting all set for the action today. It's going to be a great cracking of a game. This is the DP World Dressing Room, and we'll be back right after these messages. And welcome back, and live images coming out of the Gaddafi Stadium. Both the teams all set. This is going to be an interesting clash. Taking a look at the pitch and trying to get a sense of what it might do for both Afghanistan and England.
Right, Mark Wood there. The English bowlers were a little expensive in the last year. He said in his interview this time कि हमने थोड़ी सी ball short की और stumps के बाहर की है. The plan obviously in this match would be to aim the stumps a lot more. Yeah, well, let's take that bowling card from the last game against Australia. This is how it all went down for the English fast bowlers. The stat, English fast bowler versus Australia. Waqar. Yeah, that's not that great. I mean, one-day cricket, we all know that there is an extra fielder inside the circle. So they're expensive. होता है ऐसा कि ये नहीं कि आपको expensive नहीं, लेकिन उसने इंटरव्यू में जैसे वसीम भाई ने कहा ना कि वो थोड़ी उन्होंने वेवर्ड बॉलिंग की है. I think that needs to be fixed, and I'm sure England, I mean, being the world champions भी रहे हैं और you know they can change things around, and they're very experienced now. ऐसा नहीं है कि ये वुड हो गया, आर्चर हो गया, राशिद हो गया, ये बॉलर्स ऐसे हैं जो कल आए हैं या पिछले महीने आए हैं. They've been playing for a long period now, so I'm sure they'll fix it very quickly. Rashid Khan there saying that the Karachi pitch did surprise them. It surprised everybody. And South Africans were very happy about that. We're going to take a break here on the DP World Dressing Room. When we come back, we're getting closer to the toss. We're getting closer to the action. And that's Team Afghanistan in a huddle at Gaddafi Stadium, Lahore. Stay with us. You're watching the DP World Dressing Room. And this is 10 Sports. And there you have it. More shots coming out from Gaddafi Stadium, and that's Nabi there getting all set. Well, we're back in the DP World dressing room, and all our players are in their dressing room as well. I like the way you guys time it. Absolute, absolute precision, Wasim. That's how you were. Perfect timing. Unnecessary comment, but sure. No, not unnecessary comment. You gave us a heart attack. Actually, the production and director all look very, very worried that you disappear like this. कित्थे जानते हो? ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ तो भी ਤੁਸੀਂ शो चला लेना. But ਤੁਸੀਂ जानते कित्थे हो? है तो दस. पुल्स लैन जानते ने. Pulse लैन जानते ने. Pulse. वो एक story. Okay. Story. So, Waqar, you're very familiar with the conditions. You see there is a lot of wind. There's 51% chance of rain today, clouds, etc. Pitch, we know, is generally batter friendly. Win the toss, do what here? For Afghanistan, it's a bat first. I feel कि अगर वो बैटिंग पहले करेंगे और अगर 250 पौने 300 अगर वो कर देते हैं, then they have better chance. England के लिए I think they'll be happily doing both. I don't think toss is going to matter that much to England, but Afghanistan it can matter. It can matter. Yeah. Due in Lahore? Yeah, पिछले मैच में दिखी ना 350 चेज हुए तो शाम में ये वुड को जो और वो आर्चर इतनी जो खुल आई है वो इसीलिए आई है कि थोड़ा कहीं ना कहीं ग्रीसी जरूर होता है. Wasim, one thing that you heard Wood today, and आपने भी इस पे comment किया कि Wood कह रहा था कि we were bowling short and wide. Yeah. Here's my question to you. I mean, you're in a 50-over format. There's plenty of time for you to actually immediately say, look, I'm bowling too short and I'm giving too much room. Maybe I need to adjust my length. Why then in between the game say, okay, today we're going to target the stumps because we didn't target the stumps. Because जब आपको कुट पड़ी होती है ना, तो आपके तौर पर घूम जाते हैं. So maybe that's why हाथ पाँव फूल जाते हैं. वो माइक टायसन का एक बड़ा कोट है. Yes. क्या है वो कोट? मैं भूल गया हूँ थोड़ा सा. ये है कि everybody's got a plan. Everyone has a plan till you get punched. Until you get punched in the face. वो सारे plan ताड़े भूल जाते हैं. तितर बितर हो जाते हैं. धर्म भरम तितर बितर. यानी कि जमा हो जाते हैं. Good pitch, good weather, and a must-win game for both teams. Nikhil, your thoughts on that pitch? It's the same like the last one. बड़ा इंटरेस्टिंग था ना कि वो दिखाया कि 2.4 डिग्री बॉल यहाँ टर्न होता है. आई हैव अ फीलिंग वो जब पहली इनिंग में होगा तो उसके आंकड़े ज़्यादा फेवर में कर रहे होंगे. जो वकार भाई ने कहा, आई मीन फॉर अफगानिस्तान टू गो आउट देयर एंड बीट इंग्लैंड, द 30 ओवर्स ऑफ स्पिन वुड बी क्रूशियल एंड इट्स इम्पोर्टेंट. बट वकार भाई वाज सेइंग आल्सो कि अगर आप पहले बैटिंग करते हैं, आई नो कि गीले बॉल के साथ उनको बॉल डालना होगा, व्हिच माइट बी टफर, क्योंकि 30 ओवर आपके कितने ओवर उसमें से इफेक्ट होते हैं, किस समय वो ड्यू आती है. सो एज अ कैप्टन इफ यू आर अ लिटिल अहेड इन योर प्लानिंग ऑल्सो कि भाई लास्ट के 20 ओवर 25 ओवर तो मैंने अपने स्पिनर के ओवर निकाल देने, तो यू हैव टू सी एज अ स्ट्रेंथ ऑफ योर टीम ऑल्सो
कि यार डिफेंड करना मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है, ऊपर से 2 इंग्लैंड की विकेट निकल गई, राशिद खान का दिन अच्छा है, नूर ने अच्छा डाला, मोहम्मद नबी ने डाल दिया, तो आप गेम में फंसा सकते हैं. सो आई थिंक फॉर मी दोस 30 ओवर्स ऑफ स्पिन आर गोइंग टू बी क्रूशियल ऑन दैट सर्फेस. गीला होता नहीं होता, थोड़े बहुत बादल आए हुए हैं, जब बादल रहता है दोपहर और शाम के टेम्परेचर डिफरेंस जब ज़्यादा नहीं होता ना, तब ओस भी नहीं होती. True, that is true. Yes, the dew point is not separated. फिर ये इशू आता है. वसीम, अफगानिस्तान बैटिंग फर्स्ट और चेसिंग, their win percentage in the last 2 years has been 44%, both sides. पहले बैटिंग करें या बाद में बैटिंग करें, बट 2 साल के वो मजहर बड़ा कमाल का बंदा है, वो कहाँ से स्टैट लाता है. वही स्टैट दसता है. नजूमी को दाई ना, नजूमी ने पूरा जायचा निकाला, उससे पूछा कि जी कौन कल का मैच जीतेगा. मेरे इजाज़ से हुआ था, बड़ी पुरानी बात है. नजूमी ने जायचा निकाला, पीछे बैठा, उसको थोड़े पैसे दिए, उसने पूरी ना 5 मिनट लगाए. मैं कहा हाँ कौन जीतेगा कल, वेस्ट इंडीज ना मैच, कहता 50-50. तेरे वही स्टैट में मेरा 50-50 नहीं है, मजहर का है 44%. Yeah, it doesn't matter. I suppose you एक तो मेन चीज़ रखनी पड़ेगी ज़हन में कि यहाँ पे ड्यू पड़नी है, थोड़ी पड़नी है, ज़्यादा पड़नी है, बादल है नहीं है, ड्यू आएगी. फरवरी में दिल्ली पंजाब में ड्यू होती है, ओस होती है. तो अब आपने करना क्या है, ये प्लान करना है. अगर आपने चेस करना है तो आपकी बैटिंग का स्ट्रांग होना बड़ा ज़रूरी है. मेक श्योर इफ अफगानिस्तान विन द टॉस एंड इफ यू टेंड टू पिक टू बॉल फर्स्ट, दे शुड गेट टू. इंग्लैंड को उन्हें 270 से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, बिकॉज 300 350 जैसे ऑस्ट्रेलिया तो आराम से कर गया, वो तो एक डिफरेंट बीस्ट है ऑस्ट्रेलिया एज अ टीम. उनके मेल पे आते हैं नहीं आते, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनका माइंड सेट इज जस्ट गो फॉर इट. सो ये थोड़ा सोचना पड़ेगा कि उनका प्लान क्या है अफगानिस्तान का आफ्टर विनिंग द टॉस. So in the sorry, go ahead. Sorry. I look at अफगानिस्तान और इस टीम को, क्योंकि अगर वही टीम खिलाते हैं 11, पता नहीं क्या खिलाने वाले हैं. अगर 8-9 नंबर पे राशिद खान आ रहा है तो यूज सेकंड बल्लेबाजी में शायद आपकी बल्लेबाजी पूरी होगी. आप देख लेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं, और जो बाकी लिहाज है. वैसे तो मैं बैट फर्स्ट वाला आदमी हूँ, लेकिन अगर ये टीम खिला ही रहे हैं जिस पे 8 पे आएगा गुलबदीन नबी, 7 पे नबी और राशिद 9 पे, फिर आप सेकंड बैटिंग करें, क्योंकि नहीं तो आप उस दबाव में ही मर जाएंगे कि 350 भी यहाँ कम है. लेकिन जाट अगर उन्होंने 270 से ऊपर कर लिया, इंग्लैंड ने अगर 270 से ऊपर कर लिया, 270, आई एम नॉट सेइंग 350 तो शायद अफगानिस्तान की रीच से बाहर हो जाए. लेकिन 270 भी मुझे ऐसे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा होगा उनकी, चाहे जितनी भी लंबी बैटिंग हो, क्योंकि उनके पेसर्स ठीक है, बुरा खेल रहे हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, बट दे नॉट दैट बैड. No, they're not. नहीं, बैटिंग लंबी है यार, ऐसी कोई बात नहीं है. प्रॉब्लम सिर्फ वही है ना, मैंने कहा कि अगर वो, क्योंकि प्योर पेस जो है इनकी, वो फेज अगर निकल गया तो ये इस बैटिंग लाइनअप में जो बैटिंग स्ट्रेंथ है, वो पहले 4 अगर सॉलिड खेल गए तो रन रेट में प्रॉब्लम नहीं है इनको रन बनाने की. और ये भी नहीं रहा मुझे कि लिमिट अब सिर्फ 270 है. इस टीम की लिमिट देखें, लास्ट टाइम पाकिस्तान के विरुद्ध कितना चेज किया था वर्ल्ड कप में, आई थिंक ऑलमोस्ट 300 कुछ था. सो क्योंकि अजमत को भी नहीं गिन रहे आप, और ये सारे पीछे खेल रहे हैं, पहले बैटिंग करेंगे. पिछला मैच जो हालात हुई है, और आप समझते हो कि इट प्लेज ऑन योर माइंड कि आप इतनी जल्दी आउट हो गए थे, तो वो पहले 4 जो है ना, वो शायद वक्त ज्यादा ही लेंगे, गुरबाज को छोड़ दें. तो ये ना हो जाए कि वक्त ज्यादा ले जाएं और फिर जो ये बाकी की बल्लेबाजी रखी है, क्योंकि बॉलिंग तो है ही नहीं आपके पास, कम रखी हुई है ना आप, तो फिर वो यूटिलाइज ही नहीं होते. तो अगर यही 11 खिलाएंगे तो मैं कहूंगा कि सेकंड करना भाई. So the plan should be the plan should be कि पहले जो उनके 2 फास्ट बॉलर हैं, जोफ्रा आर्चर और वुड, उनको विकेटें कम दें पहले 10 ओवरों में. अगर ये विकेटें नहीं देंगे तो ये कोई भी स्कोर चेज कर सकते हैं. All right, there you have it. Pitch report is in और स्ट्रेटजीज के बारे में आपने सुन लिया. इस वक्त हम लेंगे एक ब्रेक, मगर ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें कि मैच के बाद आपकी खिदमत में हम दोबारा हाजिर होंगे. और आज हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल सरप्राइज है आप सबके लिए. A very, very big legend is going to be gracing the DP World dressing room. These are shots coming out from the Gaddafi Stadium. We'll see you after the break. And Afghanistan fans all set at the Gaddafi Stadium, Lahore, all excited. One thing about them, they're very passionate and always there to support their team wherever they can be.
And this is the DP World Dressing Room. I'm Fakhar Anam. You're watching 10 Sports, our continued coverage of the ICC Champions Trophy. With me in the dressing room, I've got four fantastic individuals: Nikhil Chopra, Waqar Younis, Wasim Akram, and Ajay Jadeja. We've been talking about कि टॉस करने के बाद क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम मजीद बात करेंगे. Remember today, post मैच के बाद जब हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो #AskTheRoom to win a ball signed by these four gentlemen. But आज का जो बॉल है वो बड़ा स्पेशल होगा. क्यों वसीम? बिकॉज आज के बॉल में 4 सिग्नेचर नहीं होंगे, आज के बॉल में 5 सिग्नेचर होंगे. Yeah, that's a big surprise for you. Big surprise. बता दें आप? नहीं नो. पांचवें ऐसे हैं, उस बॉल ने उनको कुछ नहीं कर पाया. जी that's true. But उस बॉल से वो खेलते रहे. Yeah, I know. One of the greats of the game. Yeah. One of the greats of the game will be gracing the DP World Dressing Room. It's a surprise. So watch us post game. Today is going to be really, really special. Really looking forward to it. तो आप सब एक बार फिर याद रहे, आज #AskTheRoom में बहुत स्पेशल बॉल जो है वो एक लकी विनर को मिलेगा. So with that, we're getting very close to the toss and we've spoken in length about what to do. Nikhil? England, I think, will Pajib look to bowl first. They don't want to chase because अगर हल्की सी भी ड्यू होती है, they want to use that advantage कि 30 ओवर स्पिन के जितना निगेट कर सकते हैं उतना चांस रहेगा. आज कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता because it is a do or die game. So I think everybody is going to try to mitigate the risk and get an easy game done. I like that. And the news is Afghanistan have won the toss and have elected to bat, but also the English captain saying that they would have liked to bat first as well. Why, Ajay? A little surprised with that. Maybe we've not been able to read the pitch the way it is from here. नहीं, but मैं कह रहा हूँ कि उनका मानना ये है कि बाद में स्लो हो जाएगी दोनों को. अगर हम सुने वो कैसे होगी मुझे पता नहीं, क्योंकि दोपहर को स्टार्ट हो रहा है, अभी धूप जो लगनी है लग चुकी होगी. शाम होके कोई भी पिच ठंडी होके स्लो नहीं होती. हाँ, अगर टूटने वाली है तो हो सकता है कि अगर उस पे भागे हैं, दौड़े हैं, बॉल गिरी है. Look like टूटने वाली to me. So I'm a little surprised that the reason why they've given. Otherwise, आप शायद पिछली बार हारे हैं. जब इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ कि आप जब खेले थे अफगानिस्तान से चेज करते हुए हारे. अफगानिस्तान पिछले मैच में हारी है चेज करते हुए. पास्ट का रिकॉर्ड आजकल बहुत देखा जाता है और ये डेटा ड्रिवन टीम हो गई. 284 किया था दिल्ली में इन्होंने और ये जीते थे 69 रन से. Batting first. Nikhil, here's the playing 11 from Afghanistan. Take us through. सेम टीम. अब क्योंकि आप पहले बैटिंग कर रहे हैं, रहमानुल्लाह गुरबाज इनके एक वो पावर प्ले में रन बनाने वाला वो खिलाड़ी है. देन मिडिल ऑर्डर कैन कम इन, सेम बैटिंग ऑर्डर. रहमत हैड अ गुड आउटिंग लास्ट टाइम अराउंड. हशमत, अजमत, Nabi Gulbateen, I hope he gets to use some deliveries, gets an opportunity to bat up the order. कोई चेंज नहीं, बट क्योंकि पहले बैटिंग कर रहे हैं वो नीचे के 3 आपके जो स्पिनर नजर आ रहे हैं, नबी, राशिद खान, नूर, फॉर मी दोज आर द मैच विनर्स. 30 ओवर में कितनी विकेट वो निकालते हैं. Ben Duckett, man in form, 165, Salt, very good player, but I think shot in लंबी मार रहा है. Smith है, फिर Root, फिर Brook has to fire. The skipper Butler, we know how good a player he is. Livingston, big hitter. Overton आया है कास की जगह. And then of course Archer, Adil Rashid and Wood, the pace battery. Looks a good side. Couple of good fast bowlers. Overton there as well. And then of course Adil Rashid is the key for these guys. All right, with that, we're going to take a break right here in the DP World Dressing Room. When we come back, we're closer to the action. Stay with us. You're watching. Welcome back to the DP World Dressing Room. Our experts have been predicting right from the beginning, and these are the points. It is Nikhil Chopra and Ajay Jadeja / Pujara that are leading. Now, Wasim Akram is closing the gap. He's moved up with 4 points. And Waqar Younis, being outstanding like always, is right at the bottom of that table. That's how it's going down at the DP World Dressing Room. There is a lot of time not left for you to catch up, Vicky. There is stuff that you have to do very fast. I know it's a short tournaments. I hate that. भाई अंडर प्रेशर यू आर द बेस्ट. मैं वैसे लंबे टूर्नामेंट भी नहीं जीतता. वैसे T20 भी तुसी 28 ऐसे ही है. Really? सर डिनाई नहीं करते. All right. Let's start up with our expert predictions for today. Ajay, let me start with you today. Who do you think is winning this one?
मेरा अब वही आया हाल है जो इनका था उस दिन। अब आया कि ऊँट they have फाड़ no के choice, because मेरा भी दिल इनके साथ है, but I don't see them batting first specially. So, England. No, but I will go with Afghanistan. I Okay. don't change my Loyalty. colors. All right. Loyalty. I'll go for England. England. Waqar? Brit. Brit. England. इंग्लैंड भाई Ooh, there's वो लीडर है वो नहीं रिस्क लेगा जब वो दो बड़े भाई बोल रहे हैं तो छोटा तो साथ चलेगा That's a risk you have taken, but it can pay you. Yeah. No risk, no reward. Yes. 100%. risky to get the biscuit And a lot of people at the start of this tournament thought they were going to make it to the semi-final. Yeah, That was Yes, me. they were. Suddenly टोपियां घूम गई है. I saw that. You also thought they will make it to the semi. Yeah. मेरे तो 4 में थी बट अनफॉर्चुनेटली अब जैसे वो चल रही बैटिंग लाहौर मैं लाहौर ना होता ना तो फिर मैं उन्होंने बैक करना था Bit that pitch. That pitch. मैं उम्मीद कर रहे हैं कि just get a good start. क्यों? क्योंकि इना कोल बॉलर ही दो ने. True. ठीक है. लिविंगस्टन जब आएगा लिविंगस्टन रूट करेंगे स्पिनर एक ही खिलाया है वही कह रहे हैं ना टोटल 5 बॉलर नहीं है Yeah. बट वो 5वें तक पहुंचने तक का मुझे डर है. हाँ वो जो गैप वो जो है ना विंडो वो क्लोज रखनी है वरना फिर वहां से मसला तो हो जाता मैंने है. वो चांस लिया है Yep. और वैसे भी इनको मैं छोड़ नहीं सकता सर अब. अरे बिल्कुल सही Fair, बात है. fair, एक दफा ये तो बहुत अच्छी बात है. That we really appreciate it. All right, folks, the game is all set, but before we get into the game, एक दफा फिर मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये जो एक्सपर्ट प्रेडिक्शंस चल रही हैं, ये जो हमारा डीपी वर्ल्ड का ट्रक है, जो मैं आपको बार-बार कहता हूं, इस ट्रक के पीछे वसीम कह रहे हैं इसमें कुछ नहीं है. मैं जानता हूं कि हमने इसके लिए क्या रखा है. इसके अंदर एक सरप्राइज है जो कि हमारे विनर को मिलेगा ऑन द सरप्राइज फाइनल के अंदर वन. सप रखा है देखना तो ये इतना बड़ा धोखा होना है हमारे साथ इतना बड़ा धोखा करना है इस बंदे ने मैं आपको एक चीज बताऊं आपके साथ क्या इनको धोखा असली होना सरप्राइज है. का तो पता आपको ही नहीं. धोखा ये होना है कि आपको बड़ा दुख होना है जब ये कंटेनर खुलने है उस दिन फाइनल वाले दिन. ये होना है आपके साथ धोखा और सरप्राइज. ऑल्सो गाइस रिमेंबर टुडे इज अ वेरी वेरी स्पेशल पोस्ट मैच बिकॉज वी गॉट अनदर लेजेंड जॉइनिंग अस हियर. It's going to be massive. और आज जो बॉल #AskTheRoom में साइन होगा वो इन 5 ग्रेड्स के साथ हम साइन करके आपको भेजेंगे टू दैट वन विनर. वो वैसे जितने बड़े लेजेंड हैं ना उनका एक स्पेशल बॉल अलहदा भी होना चाहिए. Good idea. We'll do that. और एक और रिक्वेस्ट है. Yeah. आप 5 ग्रेड्स की बात करें ना जब ये ग्रेड्स और वो है ना हमें ना जोड़िए उसमें. That's very modest of you. But that's it. Thank you very much, gentlemen. We will see you after the game. You're watching 10 Sports, and this is the DP World Dressing Room. See you at the end of the game.